Morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine. So, children, earlier we read about the sun and sun family, solar system. Okay, now let us move ahead towards the planets. The planets means the sun family. There are 8 main planets, okay, which come under the sun family. Okay, so planets are the heavenly bodies, as you can see in the picture, which receive light and heat from the sun. The planets don't have their own light. They are not self-luminous like stars. They get light from sun. Okay, they receive light and heat from sun. You can see here, from sun they receive heat and light. Got it? So the total number of planets in the solar system are 8. As you can see, there are 8 planets in order of their distance from the sun. They are, first of all, there comes Mercury. Mercury is the first planet in order to distance from sun. sun से सबसे नज़दीक मर्करी है, then Venus, then Earth. थर्ड नंबर पे हमारी planet Earth है. After that Mars, and you can see here asteroid belt. As I have told you in previous video, this is asteroid belt. You can see between Mars and Jupiter. Again you can see this is asteroid belt. ठीक है? Then there comes Jupiter, then Saturn and Uranus and Neptune. Uranus and then Neptune. Got it? So children, the first 4 planets in order of their distance from the sun are Mercury, Venus, Earth and Mars. Okay, they are called terrestrial planets. Terrestrial planets means because they have solid rocky surface. मतलब उनकी जो लैंड है वो सॉलिड है और उस पर रॉक्स भी हैं, रॉकी सरफेस है. Got it? And they are also known as inner planets. Got it? These 4 planets are known as inner planets. Then there comes Jupiter and Saturn. These both are known as gas planets. Okay, whereas the most distant Uranus and Neptune are called ice giants because they are very far from sun. Okay, and they get very little light from sun. बहुत दूर होने के कारण उन तक सन की जो लाइट है वो बहुत देर से भी पहुंचती है और बहुत कम पहुंच पाती है. गॉट इट? दैट्स वाई बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हैं ये दोनों के दोनों प्लैनेट. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड आइस जायंट्स. ओके, देन जो बच्चे मर्करी है, मर्करी हैज़ अ थिन एटमॉस्फेयर. इट इज़ वेरी नियर टू द सन, सो इसमें सब कुछ पिघल जाता है. इसका एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, पतला है. ठीक है, बहुत ही गर्म रहता है. डेज आर वेरी हॉट बट एट नाइट टेम्परेचर ड्रॉप्स 100 ऑफ डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट बिकॉज सन की तरफ इसका नहीं रहता है फेस, तो रात को बहुत ठंडा हो जाता है. गॉट इट? जितनी जल्दी ये दिन को गर्म होता है उतनी जल्दी ये ठंडा हो जाता है, बिल्कुल डेजर्ट की तरह. और ये सबसे छोटा प्लैनेट है बच्चे. ये चीज़ें आपने याद रखनी है 1 मार्क के क्वेश्चन में कि मर्करी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. गॉट इट? देन Venus is the hottest planet. Venus is the hottest planet due to its volcanic activities and thick atmosphere. यहाँ पे बहुत ज़्यादा volcanic activities होती रहती हैं, volcanoes फटते रहते हैं और यहाँ का जो atmosphere है बहुत ज़्यादा thick है और ये पीछे की तरफ backward जो है spin करता है. Got it? जैसे अगर कोई आगे की तरफ ऐसे रोटेट करके हुए चलती है अर्थ, तो ये बैकवर्ड चलता है ऐसे पीछे की तरफ. Got it? Then there comes Earth. Our home planet is the only planet which supports life due to its optimum amount of heat, light and oxygen. क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, लाइट भी है और हीट भी बिल्कुल नॉर्मल है. सन से 3rd नंबर पे है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है. गॉट इट? और लाइट भी ठीक टाइम पे यहाँ पहुँच जाती है तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है. देन देयर कम्स मार्स.
इज नोन एज रेड प्लैनेट। ये रेड दिखाई देता है, मार्स जो है इसका कलर रेड है। एज यू कैन सी हियर मार्स इज रेड एंड इज अ कोल्ड डेजर्ट। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड डेजर्ट की तरह इसको मानते हैं। इट्स एटमॉस्फेयर इज टू थिन फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग ऑन द सरफेस। मतलब ज़्यादा देर तक यहाँ पे पानी ठहर नहीं पाता है इसके जो सरफेस पे। देन ये तो थे हमारे इनर प्लैनेट्स अप टू मार्स। आफ्टर दैट एस्ट्रॉयड बेल्ट आती है और बची जुपिटर आता है। कितना बड़ा है जुपिटर? इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। देयर इज नो जुपिटर प्लैनेट। देन ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट में एस्ट्रॉयड बार बार बेटे इनमें डिस्टर्बेंस होती रहती है, आपस में टकराते रहते हैं। एस्ट्रॉयड जो है इनका कोलिजन होता रहता है, तो इनकी शॉवर से ही ये सारे प्लैनेट टूट सकते थे अब तक इतने सालों में। ठीक है, सो ये तो जुपिटर है, तो जुपिटर संभाल लेता है, बहुत बड़ा है। सो ये जुपिटर की वजह से ये चारों प्लैनेट अभी तक बचे हुए हैं। गॉट इट? देन जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस एंड नेपच्यून, these are outer planets. ओके, और इन सब के अपने अपने रिंग्स हैं। एज यू कैन सी इन सैचुरन, ये बाहर से आपको रिंग दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ऐसे करके। इन सब के अपने अपने रिंग्स हैं। गॉट इट? जो रिंग्स हैं बच्चे जुपिटर के बहुत ही फेंट हैं और दिखते नहीं हैं आसानी से। सो जो एटमॉस्फेयर है आपका जुपिटर, सैचुरन एंड यूरेनस का, ये बहुत ही ज़्यादा किससे बना है? मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम से। गॉट इट? अदर देन दीज गैसेस यूरेनस हैज़ मीथेन। यूरेनस पे सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगी? मीथेन गैस। और वो क्या देती है? इसको थोड़ा ब्लूइश कलर देती है, विच गिव्स ब्लू टिंट टू इट। ओके, ब्लू कलर देती है। सो नेपच्यून भी बिल्कुल इसी की तरह दिखाई देता है, जो सबसे लास्ट प्लैनेट है। इज सिमिलर इन कॉम्पोजिशन टू यूरेनस। जिस कॉम्पोजिशन का आपका ये यूरेनस प्लैनेट है, सेम नेपच्यून इज ऑल्सो सिमिलर इन कॉम्पोजिशन। पर थोड़ा सा कंपैरिजन क्या है? हाइड्रोजन एंड हीलियम अलॉन्ग विथ ट्रेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स भी हैं और नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा है आपके नेपच्यून में। इट ऑल्सो कंटेन्स अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ अमोनिया एंड मीथेन। बहुत ज़्यादा अमोनिया भी है और मीथेन गैस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। गॉट इट? सो दैट्स अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ दीज प्लैनेट्स। देन देयर कम्स टू देयर वॉज 9 प्लैनेट्स और नेपच्यून के बाद आपका प्लूटो प्लैनेट भी आता था। गॉट इट? देयर वॉज प्लूटो। ठीक है, बट in 2006 क्या हुआ? 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो कि साइंटिस्ट लोगों की यूनियन है, IAU, एस्टेब्लिश्ड अ न्यू कैटेगरी ड्वार्फ प्लैनेट। उन्होंने कहा कि जो प्लूटो है वो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं जो बड़े प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं, बट ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में वो फिट बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी प्लूटो को कौन सा स्टेटस मिला फिर आफ्टर 2006 के बाद? प्लूटो इज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट। ओके, एंड आफ्टर प्लूटो सेकंड लार्जेस्ट इज एरिस। ओके, एरिस भी ऐसा ही है। देन बिफोर 2006 जो प्लूटो था वो एक 9th प्लैनेट था, बट आफ्टर 2006 के बाद ही इसको, बट आफ्टर 2006 it came under the category of dwarf planet. Okay, then the ring around the Saturn was first seen by Galileo, a great astronomer of Italy, through his telescope in 1610 AD. जो गैलीलियो साइंटिस्ट था बच्चे, उन्होंने अपनी टेलीस्कोप से सबसे पहले जो सैटर्न के रिंग्स थे वो देखे थे। कि सैटर्न के रिंग्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, as you can see in the picture। 1610 AD में इन्हें देखा गया था। सो चिल्ड्रन, द रोटेशन टाइम एंड रेवोल्यूशन टाइम ऑफ 8 प्लैनेट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन होता है कि प्लैनेट अपने आप में ही गोल गोल घूमता है। ठीक है, सो मरकरी अपने आप ही घूमने में कितना टाइम ले लेता है? 59 डेज।
एंड रेवोल्यूशन मीन्स जब वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो सबसे नज़दीक है, सबसे नियरेस्ट है सन के, तो सबसे कम डेज लगते हैं बच्चे में मरकरी को रेवोल्यूशन करने में, 88 डेज। वेयर एज वीनस it takes 243 days for rotation and 225 days for revolution. Okay, and our planet Earth, it takes 24 hours for rotation. 12 घंटे का दिन होता है जब तक ये सन के सामने इसका फेस रहता है अर्थ का, और 12 घंटे की रात रहती है जब ये सन की तरफ से दूर हो जाती है. ओके, and it takes 365 days and 6 hours for revolution around the sun. Then Mars little over 24 hours, थोड़े से 24 hours से ज़्यादा टाइम लेता है, and for revolution it takes 687 days. Got it? Then Jupiter only 10 hours में अपनी rotation complete कर लेता है, and 12 years ये revolution में लेता है sun के around, because the distance from the sun is getting distant from these planets. वो दूर हो गया है तो ये ज़्यादा दिन लेते हैं रेवोल्यूशन के लिए. ओके, देन सैचरन रोटेशन के लिए बच्चे 10.7 hours एंड फॉर रेवोल्यूशन 29 years. एंड यूरेनस 17 hours फॉर रोटेशन एंड 84 hours and 84 years for revolution. Neptune 16 hours for rotation and 165 years for revolution. Got it? So that's all in this topic. Revise the topic.